Today we discuss the process of development of dicot embryo. आज हम डाइकॉट एम्ब्रियो की कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ था और फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जो चीज़ बनी थी सिनगैमी के बाद, उसे कहा हमने जाइगोट। और वो जाइगोट में जो भी चेंजेस होते हैं वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं और वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। After fertilization, the structure which was formed, it was actually the zygote. And this zygote was formed by fusion of the male and female gamete. And after fusion of the male and female gamete, the structure which was formed as zygote will further develop as an embryo. Now today, we are discussing here the process of development of dicot embryo. After fertilization, the zygote was formed. This zygote was a diploid structure formed after fusion of a male and female gamete. X chromosomes were there in the male gamete, X chromosomes were there in the female gamete, and when both of the nuclei fused in the process of syngamy, then as a result, the result which has been formed is called as zygote. जब मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन हुआ, उसके बाद जो चीज़ बनी, जो रचना बनी, उसको हमने zygote कहा। Now, all those changes, all the divisions, all the changes which are going on in the structure will be part of the embryonic development or development of embryo. First division in the zygote cell. The cell is a single cell structure, and here in zygote, our first division is horizontal division. By this horizontal division, two cells are being formed. One of the cell is called as basal cell or CB, and other cell is called as apical cell, or this is called as CA. Now, this CP will divide by the horizontal division, forming two unequal cells. One of the cell is relatively larger and the other is relatively smaller. Whereas the apical cell or the CA will divide by vertical division. It will divide by the vertical division, forming two cell stage. Now, the difference between both of the cells is that this is a product of the vertical division and this is the product of the horizontal division. This division is unequal, whereas this division is equal. And now the four cell stage is being formed. Out of these four cell stages, the upper cell, which is the uppermost cell, which is called as haustorial cell, this cell will remain undivided. But the other cell, which is actually the middle cell here, it will divide rapidly, and after multiplication it forms a long thread-like cellular structure, and this is called as suspensor. It is followed by the part of the cell which is actually the part of the apical cells, and these apical cells have a very peculiar type of the cell division process, and that division is called as periclinial division. जो यहाँ की जो divisions थे, इनमें से पहली वाली सेल जो ऊपर बनी थी, ये वैसे ही अनडिवाइडेड रहेगी। जो दूसरी कोशिका बनी थी, दूसरी सेल बनी थी, it will divide much rapidly, forming a thread-like cellular mass, thread-like structure of the cells, and then the apical cells which are present here, these cells will divide to form a mass of cells. और ये जो कोशिकाएं जो नीचे वाली थी, ये कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, तो जो कोशिकाओं का समूह बनाती है, इनमें विभाजन की क्रिया बड़ी टिपिकल सी होती है। दैट इज कि इसमें डिवीजन जो होता है वो पेरिक्लाइनल होता है, परिधि होता है, यानी किनारे किनारे से होता है, परिधि के ऊपर होता है। यहाँ पर देखें तो ये किनारे सेल्स बने हैं, यहाँ के दिस बेसल पार्ट which is called as hypophysis. Here the division process is very peculiar and it is called as periclinal division. ये पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये सेल का अगर मास है तो इसमें जो डिवीजन होगा वो पेरिफेरल होगा, किनारे किनारे होगा, और इस किनारे किनारे डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, कंडीशन ये हो जाएगी, पेरिफेरल डिवीजन होने से ये लगातार पेरिफेरी पे सेल्स बनते जाएंगे और वो सेल्स ग्रो करके मास ऑफ सेल्स बना लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स ऑफ मास, और इन सेल्स में होगा क्या, वही जो टिपिकल सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है कि यहाँ दो सेल स्टेज थी, फिर इसमें एक डिवीजन होगा, 4 सेल हो जाएगा, फिर उसमें 2 डिवीजन होंगे तो 8 सेल हो जाएंगे, फिर 8 से 16, 16 से 32, एंड दैट्स व्हाई ये सेलुलर मास जो है ये लगातार ग्रो करता जाएगा, यानी कि जो पार्ट ऑफ द हाइपोफाइसिस है इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। आफ्टर multiplications of the cells or the
you can say repeated multiple divisions, the mass of cells is being formed. और ये मास ऑफ द सेल जो होता है, इसमें सेल्स को हम लोग नॉमिनेट करते हैं, उनको अलग अलग लेयर्स के हिसाब से इनका नॉमिनेशन कर देते हैं, उनके नाम रख देते हैं. इनमें से द पेरिफेरल पार्ट, the cellular mass is being formed, and in this mass the peripheral cells are called as dermatogen, second layer is called as peribellum, and third is central part is called as pleurome. So the pleurome is in center, the dermatogen on the periphery, and in between dermatogen and the pleurome the mass of cells is called as peribellum. जिस तरह से एनिमल्स के केस में एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनती हैं, वैसे ही प्लांट के केस में ये डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लूरोम बनते हैं, जो फ्यूचर में बॉडी के प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. नाउ आफ्टर फॉर्मिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लूरोम, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हियर, दैट इज this important event is that this cell present at the tip in the center at the apex stops dividing. इसमें एक विशेष परिवर्तन ये होता है कि इस कोशिका समूह में से एक सिरे पर स्थित सेल जो है, इसका विभाजन बंद हो जाता है. Whereas the cells adjacent to that they keep on dividing. जबकि अगल बगल वाली कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, they keep on dividing. और डिवीजन के बाद क्या होगा, जब डिवीजन होगा, लगातार ये एक सेल डिवाइड नहीं कर रही है और बाकी की सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, they will form mass of the cells, two lateral mass of the cells. So because the apical cell was not dividing, this cell was not dividing, and that's why a bilobed mass of the cells is being formed. This is a bilobed structure, the bilobed cellular mass which has been formed, and this mass represents the cotyledons. जब एक सिरे पे स्थित कोशिका ने विभाजन बंद कर दिया, इसके अगल बगल की सारी कोशिकाएं विभाजित होती रहीं, तो उससे कोशिकाओं के एक समूह का निर्माण हुआ. ये कोशिकाओं के समूह जो थे, ये दो लोब्स में थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये फ्यूचर में चल के कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन करता है. इसी कॉटिलिडन से फिर ट्यूब्यूल रेटिकल डेवलपमेंट होगा. इसी कॉटिलिडन में इंपॉर्टेंट नरिशिंग मटेरियल मौजूद होंगे. यहाँ पर हॉस्टोरिया एंड सस्पेंसोरियम प्रोवाइड्स एंड सपोर्ट टू द कॉटिलिडनरी पार्ट और द एपिकल मास और द हाइपोफाइसिस. ये जो हाइपोफाइसिस वाला हिस्सा है, इसको सपोर्ट देने का काम जो होता है, वो किया जाता है बाय सस्पेंसर एंड बाय द हॉस्टोरिया. इसके बाद चूंकि अब यहाँ पर आते आते ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो लगभग पूरी हो चुकी है. एट दिस स्टेज almost the embryo development process has been completed. That's why as a product what happens here, this is the well matured seed. Inside the seed this is the structure of the embryo is present. एक परिपक्व के बीज के अंदर ये भ्रूण मौजूद है. इस भ्रूण में वही तीन हिस्से हैं. एक पार्ट जिसे हम कहेंगे हॉस्टोरिया, दूसरा सस्पेंसर और तीसरा जो है वो पार्ट है कॉटिलिडन का. And this entire part is situated inside the female gametophyte of the ovule, which was actually the mass of nutritive material. ये सारी की सारी चीज़ें फीमेल गैमेटोफाइट में मौजूद हैं, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है. तो इन जिस समय ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही है, उस समय इसको जो पोषक पदार्थ चाहिए वो भी इसको इसी क्षेत्र से मिलते रहेंगे, ये इस पेरिफेरल पार्ट से मिलते रहेंगे. अराउंड द एम्ब्रियो, the peripheral part, which is the part of the female gametophyte, is a triploid structure formed after triple fusion. जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज हुए थे, उससे जो चीज बनी थी, जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है और ये फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाता है. तो ये वही भी हिस्सा है, ये ग्रीन वाला सारा हिस्सा है, the peripheral that part is actually the part of the endosperm, which is very rich nourishing material, which accumulates a large quantity of the nourishing material. इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों का संग्रहण रहता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद सीड तक, जब तक सीड स्टोर रहता है, जब तक जर्मिनेट नहीं होता, जब सीड जर्मिनेट होके फोटोसिंथेसिस करने लगता, तब तक के लिए नरिशमेंट उसको यहीं से मिलता रहता है. सो दिस इज द पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड एनर्जी to the seed till the process of germination is completed and plant starts the photosynthesis.
because after photosynthesis only the plant can form its own food. Till photosynthesis is not there, the plant will not be capable of forming its own food. So it must be dependent on the reserve food material, और वो reserve food material जो है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में. Now here the Haustoria suspensor are there, and this is the part of the cotyledon, and the cotyledon is actually contains two major important components of the embryo, and these two important components of the embryo are preview or the tip of the stem, and other part is radical, the tip of the root. इसमें ये वाला हिस्सा जो आगे का है इसे हम लोग प्रीम्यूट या प्रांकुर कहते हैं, इससे भविष्य में तने का निर्माण होना है, और पीछे वाले हिस्से को इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, जिसे मूलांकुर कहा जाता है. इससे भविष्य में निर्माण होता है जड़ का. तो जड़ और तने का डेवलपमेंट इन दो पार्ट से होगा, और ये पार्ट सिचुएटेड कहाँ है, ये मौजूद है यहाँ पर एम्ब्रियो के बीचों बीच के हिस्से में. दिस पार्ट ऑफ द प्यूबिल एंड रेडिकल्स आर सिचुएटेड हियर इन बिटवीन द embryo, the cotyledonary part of the embryo, and this part will develop as a root and stem in future. So this is all about the development of dicot embryo. Suppose it was the case of the monocot plant. अगर यही भ्रूणीय विकास मोनोकॉट में हो रहा होता, उस कंडीशन में क्या होता, ये जो एपिकल सेल था ये डिवाइड करना बंद नहीं करता, ये भी डिवाइड होता रहता. If it is the case of the monocot embryo, in that very case, what happens that this cell keeps on, this cell, in the case of dicot, this cell is not dividing here, but in the case of monocots, it will keep on dividing and forming a mass of the cell, a single lobular mass of the cells. अगर ये इस तरह से मास ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाता, और ये मास ऑफ सेल जो फॉर्म होता, इसमें जो कॉटिलिडन का हिस्सा जो ये बना है ये नहीं बनता, और इसके न बनने की वजह से क्या होता है, ये एक मास ऑफ सेल बनता, एंड दैट्स व्हाई एक ही कॉटिलिडन बनता है. यहाँ दो कॉटिलिडन बने, वहाँ एक ही बनता, इसीलिए उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं, उसको डाइकॉट कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक ही बेसिक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि ये जो सेल है जो कि डाइकॉट में डिवाइड करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दो मास ऑफ सेल्स बने थे, बाइलोब स्ट्रक्चर बना था. मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, ये सेल भी डेवलप करता रहता है, और उसकी वजह से एक लोबुलर मास बन जाता है, सिंगल मास बनता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है. तो डाइकॉट में दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मोनोकॉट में स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. थैंक यू.